D4 न्यूज देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व आईएएस अधिकारी डॉक्टर जगमोहन सिंह राजू ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोहाली पुलिस में एक शिकायत दर्ज की है, जिसमें कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। अपनी स्पीच के दौरान अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी ने पाकिस्तानियों के साथ सेटिंग कर रखी है। मोदी ने आतंकवादियों के साथ सेटिंग कर रखी है, उसकी पोल खोलना जरूरी है। दोस्तों, अभी हम आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे। मोदी ने पाकिस्तानियों के साथ सेटिंग कर रखी है, मोदी ने आतंकवादियों के साथ सेटिंग कर रखी है, उसकी पोल खोलने की जरूरत है। दोस्तों, आज जब आप गांव-गांव के अंदर में जाओगे, कुछ लोग भ्रमित हैं, कुछ लोग कहते हैं मोदी राष्ट्रवादी है, कुछ लोग कहते हैं मोदी देशभक्त है। आज आपकी जिम्मेदारी है जाके कहना कि मोदी जैसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। दोस्तों, और इसी को लेकर हमने बात की डॉक्टर जगमोहन सिंह राजू के साथ। आइए बताते हैं उनका क्या कहना है। सत श्री अकाल सर। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੀਪਕ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਦੀਪਕ ਜੀ, ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਐਤਵਾਰ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ जी अरविंद केजरीवाल जी एक बड़ा भड़काऊ भाषण दे जी 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 और उस भाषण ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਜੀ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੈਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਜੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬਈ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੇਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪੱਤੀਜਨਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 3 ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੀ ਨਾ ਵੈਸੇ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਹੋਰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਕਿਦੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿੱਥੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ युद्ध की तरह परिस्थितियां बनी हुई हैं जी, कहने का मतलब है। और ये कहते हैं पाकिस्तान हिंदुस्तान आमने सामने खड़ा है, युद्ध की परिस्थितियां बनी हुई हैं, मतलब ऐसे माहौल दे विच जी। और फिर वो हरियाणे दे विच जो कि 10 ਤੋਂ 11% ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਆਈਟਮ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਗੜ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਓ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੇਨ ਫੌਜ ਚ ਆਉਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਜੀ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ।
ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਅਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਡਿਸਅਫੈਕਸ਼ਨ ਫੈਲਾਣਾ, ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਣਾ फौज दे विच भी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक लास्ट मेरा सवाल है जी, जे कार्रवाई कोई नहीं करती, क्योंकि पंजाब पुलिस किस तरह कार्रवाई करेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब दे विच, मोहाली च तुसीं शिकायत की है, तो तुहाडा अगला स्टेप क्या होएगा? देखो ये सारे स्टेप्स हैं कि भाई जो नहीं करते तो असी हाई कोर्ट जावांगे, असी ये नहीं इत्थे करनगे तो असी फिर दिल्ली जाके रिपोर्ट दर्ज करवावांगे, दिल्ली पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाई सकती है, पर कई लीगल ऑप्शन हैं, क्योंकि मुद्दा बड़ा सीरियस है। एक अल्फाज इन्ने शब्द जेडे कठोर और बड़े क्रिमिनल वर्ड्स उन्होंने यूज किए ने जी, उन्हों दा बिल्कुल एक कानूनी कार्रवाई उत्ते जरूर होनी ही चाहिए है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, साडे नाल गल करनी तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद दीपक जी, नमस्कार। नमस्कार। हमने वो वीडियो आपको सुनाई है जिसमें अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा रहे हैं। अब फैसला आपको करना है कि हम आपको ये बताएंगे कि कुछ दिन पहले की घटना है और इसकी याद भी आपके जहन में ताजा होगी, जब पंजाब पुलिस दिल्ली के एक सिख नौजवान तजिंदर सिंह बग्गा को गिरफ्तार करने जाती है। आरोप था कि बग्गा ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर कुछ ट्वीट किए हैं। 40-50 पुलिस कर्मचारी दिल्ली रवाना होते हैं, बग्गा को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है और तभी केंद्र सरकार हरकत में आती है। हरियाणा पुलिस पंजाब पुलिस को हरियाणा में ही रोक लेती है और तजिंदर बग्गा को रिहा करवा लिया जाता है और पंजाब पुलिस के कर्मचारियों पर अगवा का मामला भी दर्ज कर लिया जाता है। अब जो वीडियो आपके सामने आया है उसमें देखिए आप किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल खुले मन से आरोप लगा रहे हैं। अब यह वीडियो ज्यादा घातक है या वो ट्वीट जो कि तजिंदर सिंह बग्गा ने किया था, फैसला आपको करना है। उधर तजिंदर बग्गा आज पहली बार मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा पंजाब पुलिस ने उन्हें एक आतंकवादी की तरह गिरफ्तार किया था, क्योंकि उन्होंने आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के मामले, ड्रग माफिया और खालिस्तानी अलगाववादियों के खिलाफ कार्रवाई करने के अपने वायदों के बारे में पूछा था। बग्गा ने कहा कि मैं केजरीवाल से तब भी सवाल पूछना जारी रखूंगा जब मेरे खिलाफ एक नहीं 1000 मामले दर्ज हो जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा मुझे एक आतंकवादी की तरह गिरफ्तार किया गया था। क्या केजरीवाल से श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के आरोपी को गिरफ्तार करने के उनके वायदे के बारे में पूछना कुछ गलत था? क्या पंजाब में खालिस्तान के नारे लगाने वाले ड्रग माफिया और अलगाववादियों के खिलाफ कार्रवाई के बारे में पूछना कुछ गलत है? कुछ गलत है तो उसकी सजा मुझे जरूर दी जानी चाहिए। अरविंद केजरीवाल पंजाब जीतने के बाद अपने आप को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से बड़े समझने लग पड़े थे। आज उनका वो दम भारत की उच्च न्यायालय ने तोड़ने का काम किया। जिस प्रकार से नाजायज तरीके से मेरी पंजाब पुलिस द्वारा किडनैपिंग कराई गई, मुझे गिरफ्तार कराया गया। मेरा दोष क्या था? मेरा दोष ये था कि मैं अरविंद केजरीवाल से पूछता था कि गुरु ग्रंथ साहब जी के बेअदबी करने वालों को जेल के अंदर कब डालोगे? आपने ही तो कहा था कि 24 घंटे के अंदर जेल के अंदर डालेंगे। उनको 2 महीने बीत गए, कब जेल में डाला? मैं तो ये पूछता था कि मेरे पंजाब के जो बेटियां हैं उनके सुहाग गुजर रहे हैं, माओ की कोख गुजर रही है। उन ड्रग्स माफियाओं को आपने कहा था 1 हफ्ते के अंदर जेल में डालोगे, आपने एक भी एफआईआर नहीं की, कब उनको जेल में डालोगे? मेरा दोष ये था, मैं उनसे पूछता था जो पंजाब के अंदर अलगाववाद के नारे लगा रहे हैं, जो खालिस्तान के नारे लगा रहे हैं, वो देश तोड़ने वालों को जेल की सलाखों के पीछे कब डालेंगे? लेकिन इन दोषियों में से किसी को जेल की सलाखों में नहीं डाला गया। मुझे इस प्रकार से गिरफ्तार किया गया जैसे किसी आतंकवादी को गिरफ्तार किया जाता है। अगर मेरे खिलाफ अगर आप उस एफआईआर को देखेंगे, मैंने ये कहा था, जो उन्होंने कहा कि कश्मीर फाइल्स की फिल्म झूठी है, मैंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जब तक इस हिंदू समाज से माफी नहीं मांगते, क्योंकि 1947 के बाद
इस देश का सबसे बड़ा अगर कोई नरसंहार हुआ है तो वो कश्मीरी पंडितों का हुआ है, जहां 5 लाख लोगों को अपने घर छोड़ के जाना पड़ा। मैंने ये कहा था कि उन लोगों से माफी नहीं मांगोगे तो हम आपको चैन से जीने नहीं देंगे। पंजाब पुलिस के मोहाली स्थित इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर हमले का पहला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि हमलावरों ने कार से ही रॉकेट दागा था। जिस वक्त धमाका हुआ, कार वहां से गुजरती हुई भी नजर आई। फुटेज में हमलावरों की स्विफ्ट कार भी नजर आई है। वहीं संदिग्ध हमलावर भी दिखाई दे रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पहला नाम है तरनतारन के भिक्कीविंड के रहने वाले निशान सिंह का। निशान सिंह तरनतारन के भिक्कीविंड के गांव कुल्ला का रहने वाला है। उस पर कई केस दर्ज हैं। करीब 1.5 महीने पहले वह जमानत पर रिहा होकर बाहर आया था। उसका गांव भारत पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक है। मोहाली और फरीदकोट की पुलिस ने ज्वाइंट एक्शन के तहत उसे गिरफ्तार किया है। उससे पूछताछ के बाद निशान के साले सोनू को अमृतसर से गिरफ्तार किया गया। मोहाली पुलिस ने इस केस में तरनतारन के गांव मेहंदीपुर का रहने वाला जगरूप सिंह उसे भी गिरफ्तार किया है। उस पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं और वह भी पैरोल पर बाहर आया हुआ था। इस साजिश का अब पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आ रहा है। इस साजिश के पीछे पाकिस्तान में बैठे कुख्यात गैंगस्टर हरविंदर सिंह और रिंदा को मुख्य आरोपी माना जा रहा है। आशंका है कि रिंदा ने ही ड्रोन के जरिए यह रॉकेट लॉन्चर पंजाब में भेजा था। अब पुलिस निशान सिंह और जगरूप सिंह से पाकिस्तान में बैठे रिंदा से संपर्क के बारे में पूछताछ कर रही है। आपको पहले ही बता दें कि पंजाब की भगवंत मान सरकार ने हाल ही में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाकर गैंगस्टर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की है। श्री अकाल तख्त साहब के कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि हमारे ध्यान में आया है कि वर्ष 1947 में सिखों को जो अल्पसंख्यक होने का दर्जा मिला है, भारत सरकार उसे खत्म करना चाह रही है। भारत सरकार से उन्होंने अपील की है कि ऐसा ना किया जाए। साडी जानकारी दे विच ये आया कि 1947 तो जिहड़ा सिखां नूं भारत दे अंदर नैशनल माइनॉरिटी का दर्जा जिहड़ा मिलिया, उन्होंने किते ना किते भारत सरकार वालों तोड़न का यतन किया जा रहा है या यतन हो रहा है। तो ये असी कहना चाहुंदे हां भारत सरकार नूं कि भारत दे विच सिख जिहड़े ने वो माइनॉरिटी ने, सिखां नूं माइनॉरिटी का जिहड़ा है वो स्टेटस मिलिया होया और सिखां दा पूरे देश के अंदर भारत के अंदर माइनॉरिटी स्टेटस जिहड़ा है वो बरकरार रहना चाहिए। इनू तोड़न का यतन जिहड़ा है वो नहीं होना चाहिए। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार के कहे अनुसार श्रोमणी अकाली दल की ओर से पंथक इकट्ठ बुलाया गया था। इस इकट्ठ में यह फैसला लिया गया है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष की अध्यक्षता में बंदी सिंहों को रिहाई करवाने के लिए संघर्ष किया जाएगा। उसमें पूर्ण तौर पर हमारी पार्टी साथ देगी। श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब के हुक्म आदेश से श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एक पंथक इकट्ठ बुलाया, जिथे सारी जथेबंदियां नूं सुनेहा दिता। तो बड़ी खुशी है कि अज समूचा पंथ इकट्ठा होया। मैं कह सकदा कि पिछले 30 सालों मैं एजा एकता का गल तो इकट्ठ का मैं देखा नहीं जिवें अज देखा। जिहड़े लोग अज तक इकट्ठे नहीं सी, अज इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म ते होए है तो यूनैनिमसली फैसला किया सारी जथेबंदियां ने, महापुरखा ने, निहंग सिंह जथेबंदियां ने, वख-वख अकाली दल जिहड़े बने उन्होंने कि आपां श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की प्रधान की अगवाई थले कमेटी बना के आ बंदी सिंघां की रिहाई वास्ते आपां संघर्ष करांगे। जो प्रोग्राम आ कमेटी बनाएगे असी सारे वो प्रोग्राम नूं मन्नांगे ते असी मिशन कंप्लीट करांगे। अमृतसर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक फ्रूट के टोकरे के कारण दुल्हन ने शादी करने से इनकार कर दिया। जानकारी के मुताबिक लड़की पक्ष वाले एक दिन पहले लड़के को शगुन लगाने के लिए आए थे और उसमें फ्रूट का टोकरा दिया गया था। अगले दिन लड़के वालों ने भी लड़की को शगुन लगाने के लिए जाना था, तो वो जब फ्रूट का टोकरा लेकर गए तो लड़की ने शादी करने से इनकार कर दिया। दूल्हा जो कि घनपुर काले का रहने वाला है, उसका नाम सतपाल सिंह बताया जा रहा है। उसका कहना है कि एक दिन पहले उसे शगुन लगाने के लिए उसके
ससुराल वाले आए थे और अगले दिन लड़की को शगुन लगाने के लिए उनका परिवार भी वहां पर गया था और फ्रूट का टोकरा व दूसरे सामान लेकर उस लड़की के घर गए थे। इतने में जब वहां पर पहुंचे तो लड़की ने शादी करने से इनकार कर दिया और आरोप लगाया कि जो फ्रूट का टोकरा हमने लड़के को भेजा था वही फ्रूट का टोकरा हमें वापस मिल गया है, अब हम शादी नहीं करेंगे। एक तरफ जहां सतपाल के घर में खुशी का माहौल था, घर में डीजे चल रहा था, सभी रिश्तेदार भंगड़ा डाल रहे थे और शादी की तैयारियां हो रही थी। दूल्हे के सर पर सेहरा बांधा जाना था, लेकिन अब यह सेहरा उसकी माता के हाथ में धरा रह गया है। खुशियां आने से पहले ही मायूसी उनके घर में छा गई है। अब सतपाल का परिवार पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। देखिए पूरा मामला क्या है। देखो जी, मैं रजिंदर सिंह चौकी इंचार्ज कनूपर कले, ये मेरे को हुणे ही आए आ दरखास्त दी है भी इन्हों का मंगनी हुई सी जोड़ा फाटक लागे किस लड़की ने, तो वो संबंधी इन्हों किते रात इन्हों का जवाब दिता। अज बरात जानी सी, नहीं गई इन्हों की। हुण इन्हों पता लगा इन्होंने कहने के मुताबिक भी उत्थे थाने बुलाया गया, तो फिर मेरे को दरखास्त देना है। हुण देख लांगे सवेरे उन्होंने फोन करके भी की मैटर की है, क्यों जवाब दिता, जो इन्होंने दोनों परिवारों के की इहो जी गल निकली जी करके जवाब देना पै गया। की कार्रवाई की जाएगी? पुछ गई है जी, हुण दोनों परिवारों का वेख लांगे की व्यू इन्हों का, वो किहड़े हालातों करके जवाब दिता। एडी छेती कोई मौके पर रात जवाब नहीं दिंदा, हालात की बने, क्यों जवाब दिता गया, वो क्लीयर करके अफसरों नोट च लियावांगे सारी गल। बुधवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कई लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे और मान ने कहा कि पिछली सरकारें जानबूझकर कर्मचारियों को घर से दूर ट्रांसफर करती थी, इसके बाद कर्मचारी उनके चक्कर काटता ताकि उसका तबादला हो सके। फिर वह घर के पास ट्रांसफर करवाने के लिए 2 महीने का वेतन देने को मजबूर हो जाता। मान ने कहा हमारी सरकार में ऐसा नहीं है, हम कोशिश करेंगे कि घर के नजदीक ही किसी का भी ट्रांसफर किया जाए। मान ने यह भी कहा कि उनके पास बिजली बोर्ड का एक कर्मचारी आया और उसने कहा पहले वे रखड़ा में था, अब मुझे देवीगढ़ भेज दिया गया है। मान का कहना है कि मैंने उससे पूछा कि यह रखड़ा क्या इराक वाला है, जो उसने कहा कि रखड़ा 10 किलोमीटर है और देवीगढ़ 10 किलोमीटर। इस पर उसे समझाया गया कि लोग तो गंगानगर से भी सरकारी नौकरी करने के लिए आने को तैयार हैं और तुमसे 15 किलोमीटर का सफर तय नहीं होता है। ਅਸੀਂ कोशिश यही करांगे कि दिक्कत ज़्यादा ना आवे, भी बदलियां दी लोड़ ना पवे, क्योंकि पहले की हुंदा सीगा जान बुझ के बदलियां दूर कीतियां जांदियां ताकि वो बदलियां कराउण वास्ते आउण ते फिर उन्हां नूं इन्ना ज़्यादा मतलब खज्जल खुआर किया जाए भी वो कह दें चल 2 महीनों की तनख्वाह ही मंगदा है, दे दें यार, कला हो जाए। असीं ये नहीं करना, कोशिश करांगे कि घरां दे रेडियस दे विच ही काम करो, ज़्यादा वधिया काम करोगे। पर कोई किते दूर जाओगे तो घर आउण दी चिंता रहूगी, घर वाले भी तुहाडे कोले आउणगे, सो कई बारी कंसनट्रेशन जिहड़ी है काम तो हट जाती है। सो असीं कोशिश यही करांगे जिम्पा जी जिन्नियां भी करनियां ना, कोशिश करियो कि घरां दे रेडियस दे विच ही किते। हाँ जी, पर हाँ इन्ना कई बारी असीं भी थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं। एक बिजली बोर्ड के मुलाजम आए, कहना जी मेरी बदली, कहना पहले मैं रखड़े लग्या होया सी। मैं कहा अच्छा जी, पटियाले दे नाल ही है, चक के हो देवीगढ़ मारिया जी। रखड़ा 10 किलोमीटर है, देवीगढ़ 18 12 15 है। जिहड़े तरीके नाल उन्होंने हो कहा ना, मैं कहा भी उही रखड़ा जिहड़ा इराक च पैंदा है। कहना नहीं जी पटियाले दे नाल ही है। मैं कहा फिर यार उत्थे कर लै नौकरी, लोग गंगानगर तो आके इत्थे नौकरी करने तैयार ने। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब में पंचायती जमीनों पर हुए अवैध कब्जों को लेकर नए आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने अवैध कब्जाधारियों को आदेश दिए हैं कि 31 मई तक अपने अवैध कब्जे छोड़ दें। अगर यह कब्जा नहीं छोड़ा तो पुराने खर्चे और पर्चे भी दर्ज किए जाएंगे। मान ने ट्विटर पर लिखा है कि जिन व्यक्तियों ने सरकारी या पंचायती जमीनों पर अवैध कब्जे कर रखे हैं, चाहे वह राजनीतिक लोग, अफसर या फिर कोई रसूखदार हो, मैं उन्हें अपील करता हूं कि 31 मई तक अवैध कब्जे छोड़ जमीनें सरकार को दे दे, वरना उनसे पुराने खर्चे भी वसूल किए जाएंगे और उन पर मामले भी दर्ज किए जाएंगे।
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। कैप्टन ने इस बार चुनाव में शराब ठेकेदार से उधार लिया था, जिसका जिक्र उन्होंने आयोग को दिए गए खर्च में किया है। कैप्टन ने इसमें बताया कि उन्होंने चुनाव पर 39,67,000 रुपए खर्च किए, इसमें से 25 लाख रुपए उन्होंने उधार लिए। यह उधार जिस व्यक्ति से लिया गया वह शराब का ठेकेदार है। इसकी जानकारी मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ने भी पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर तंज कसा। आम आदमी पार्टी के पंजाब के मुख्य प्रवक्ता मालविंदर सिंह कंग ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह 9.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने सिसवा जैसा फार्म हाउस खड़ा कर लिया। अब पता चल रहा है कि चुनाव लड़ने के लिए कर्जा लिया, वह भी एक शराब के ठेकेदार से। उन्होंने कहा कि कैप्टन साहब को तो पाकिस्तान से भी फंड आ सकता था। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब में ऐसे ही चलता था। पहले वह नेताओं को फेवर करते थे, फिर नेता सरकार बनने के बाद माफिया को फेवर करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। पुराना खर्चा ते नवा परचा, स्पष्ट गल है। इस चो सीधी जी गल निकलती है भी जे तुसी 31 मई तो पहला कर दोगे तो तुहाडे ते कोई पेनल्टी टाइप कोई नहीं लगूगी सरकार वालों। तुसी अपना एक जो भी सरकारी रिसोर्स दबिया या अपने कब्जे हेठां नूं वापस कर दिता जाए, जो प्रक्रिया सरकार ने दी है। अदरवाइज फिर पूरा हिसाब लिया जाऊगा किन्ने सालों तो जमीन वाही जा रही सी, किन्नी उते इनकम हुई, किन्ना फायदा होया, ते परचा जिहड़ा कानून दे जी एग्जैक्टली वो तो मानयोग मुख्यमंत्री जी ने जो कह ही दिता तो मुख्यमंत्री जी करते हैं चंगी तंदुरुस्ती मिले, सेहत मिले, लेकिन 9.5 साल के करीब वो मुख्यमंत्री रह गए। 9.5 साल च जिन्हें कोई पंजाब का भला नहीं किया ते अपने सिस्मा वर्गे फार्म खड़े कर ले ते अज इलैक्शन लड़न लई दर वास्ते। और जिहड़ी मैं खबर पढ़ी है उस कह रहा है भी किसी शराब के कारोबारी तो उन्होंने लोन लिया या कर्जा लिया। पंजाब के शिक्षकों का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें वह खाने की प्लेटों पर भूखों की तरह टूट पड़े हैं। पुरुष अध्यापकों ने महिलाओं का भी लिहाज तक नहीं किया, एक दूसरे पर लपकते हुए प्लेटों पर टूट पड़े। हालांकि खाने की प्लेटों का वितरण करने के लिए विशेष तौर पर कैटरिंग करने वाली कंपनी की ड्यूटी लगा रखी थी, लेकिन अध्यापक उसके हाथों से ही प्लेटें छीन रहे थे। जब प्लेटें खत्म हो गई तो कई एक दूसरे से प्लेट छीनते हुए भी दिखे। खाने को लेकर तमाम शिक्षक शिष्टाचारों और संस्कारों को भूल गए। इसे लेकर सोशल मीडिया पर अध्यापकों का खूब मजाक भी उड़ाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये वह लोग हैं जिनके हाथों में हमारे देश का भविष्य है। ये खुद ही संयम नहीं रख सकते तो फिर बच्चों को क्या शिक्षा देंगे। प्रिंसिपल प्लेटा नहीं लड़ते हैं यार। आप ਇਹ ਜੀ रिफ्रेशमेंट का इंतजाम प्रिंसिपल्स और हेड टीचर्स प्लेटा दे नहीं लड़ते हुए बस चक लो ओहो टिश्यू पेपर दी धज्जियां उड़दियां हुई। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।